Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing great in your life. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 17, which name is sports competition. तो आज हम जाने वाले एक स्पोर्ट कंपटीशन में और वहां जाकर देखते हैं कि हमें क्या नया मैथ्स के बारे में सीखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनकपुर विलेज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स वर ऑर्गेनाइज्ड. The first competition was a race in which a rabbit, a cat, and a mouse took a part. As soon as the race started, rabbit took four jumps, the cat took three jumps, and mouse took two jumps. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक एनिमल ने different jumps ली हैं and started running. In this race, the rabbit ran fast and reached the destination first, got the first position, the cat got the second position, and the mouse ने कितनी position है? Mouse got the last position. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब फोर जंप्स लिए तो फोर से पहले सबसे पहले जंप करा होगा फोर पे, देन नेक्स्ट 8, देन 12, देन 16, यानी कि किसका टेबल है? ये 4 का टेबल है. देन जब 3 जंप्स करी हैं तो यहाँ पर 3, देन 6, देन 9, देन 12, तो कितना गैप है? 3 का गैप पर आप ऐसा कह सकते हैं कि 3 का टेबल है. नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 का टेबल, तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो यहाँ पर ये आपका 2 का टेबल है. नाउ टू कंप्लीट द रेस अलोंग द गिवन ट्रेल, race the mouse, cat, and rabbit to reach 60 to finish the race. Think and tell on which number did the mouse jump? 2, 4, 6 और 6 के बाद क्या होगा? 8. Then आपका 10. How many jumps will the rabbit have to make to reach 32? तो यहाँ पर वो 4 की जंप्स ले रहे थे, तो 32 तक पहुंचने के लिए टोटल 8 जंप्स लेनी पड़ती रैबिट को. Who among the 3 jumps on 27? तो जिसने 3 की जंप ली, यानी कि आपकी कैट, तो उसने who among the 3 jumped on 27? That is your cat. On which number did the rabbit jump? 4, 8, 12 and 12 के बाद सीधा 16. How many more jumps did the cat take than the rabbit to finish the race? कितनी और जंप लेनी पड़ती कैट को रेस फिनिश करने के लिए? तो कैट का कहाँ पे एंड हुआ? 30 पे. तो अगर वो एक और ले लेती, यानी कि 10 ली है उसने, अगर वो 11th जंप अपनी ले लेती तो वो विनर हो जाती. The number on which the mouse jumped are multiples of 2. Similarly, the cat jumped on numbers which were multiples of 3. Can you tell on which multiples of the number the rabbit jumped over? That is your multiple of 4. Come, let's play a game. Now, make your friends sit in a circle and ask one of them to say 1, the next sitting in the second place to say 2, and similarly the children sitting next to it will continue the counting. The children who get the numbers that come in the multiplication table of 5 should not say the numbers but say जय भारत. यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आएगा तो क्या बोलेंगे? जय भारत. 6, 7, 8, 9, तो 9 के बाद क्या आएगा? 10. 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो आप क्या बोलेंगे? जय भारत. टेक द गेम फॉरवर्ड इन दिस मैनर. ऑन विच नंबर डिड यू से जय भारत? तो सबसे पहले आप बोलेंगे जय भारत नंबर 5 पर. उसके बाद राइट इट डाउन, डैश द नंबर ऑन हुज प्लेस जय भारत वाज सेड. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस पर आएगा, वो बच्चों का वो है, लेकिन जो नेक्स्ट नंबर आएगा आपका, ये आपका क्या होगा? 10. वाज सेड आर मल्टीपल्स ऑफ 5. राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 1 to 100 ऑन द बीट्स लिस्ट. तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको मल्टीपल्स ऑफ 7 बताने. तो यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पर ऑन द बीट्स रेड बीट्स पे बताने. तो अगर ऐसी मैं ऐसे कंटिन्यू करती हूँ तो 7, देन 14, यहाँ पर आएगा आपका 21, 28, देन आपके पास आएगा 35, देन 42, 49, 49 के बाद आपके पास आएगा 56 एंड 56 के बाद आपके पास आएगा 63 एंड देन 70. तो ये क्या है? ये है आपके मल्टीपल ऑफ 7. Guess the puzzle. I am a multiple of 8. I fall between 60 and 70. So multiple of 8 है और कहाँ पर लाइक करता है? 60 and 70. So that is your 64. 8 8 is 64. Next, I am a 2-digit multiple of 7. When you write me the digit 3 comes in the unit place. तो ये क्या होगा? ये होगा आपका 63. इस तरीके से आप इन पजल्स को कंप्लीट कर सकते हैं. You also tried. Write counting numbers up to 100 in your exercise book. Now starting from 1, make a triangular shape on the numbers coming at the intervals of 5, 5 and make a square shapes on the numbers coming at the interval of 6, 6 and find the multiple of 5 and 6. तो इसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे? मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 6.
You can also try to find the multiples of different numbers with the help of मोतीमाला, जय भारत गेम एंड नंबर चार्ट। तो यहाँ पर आपने जंप ऑफ माउस से किसके मल्टीपल सीखे? आपने सीखे मल्टीपल ऑफ 2। तो आफ्टर 22 आपके पास क्या आता है? 24, देन 26, देन 28, 30 और ये कंटिन्यू होता है टिल 60। नाउ जंप ऑफ कैट, ये क्या थी? मल्टीपल ऑफ 3। तो आफ्टर 27 क्या आता है? 30, 33, 36, 39, 42। इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू करते हैं। The numbers on which both the mouse and the cat jump are 6, 12, 18. On which number after 18 will both the mouse and the cat jump? Right. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 18 के बाद माउस और जो कैट है उनका कौन सा नंबर सेम होता। तो 3 के टेबल में आपका 18 के बाद आता 21, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे देखिए 2 एंड 3 था ना, माउस 2 की जंप ले रहा था, राइट, और कैट कितने 3। तो 18 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता वो होता आपका 24, जो 2 एंड 3 दोनों में कॉमन होता। अब इन्हें आप क्या कहते हैं? जो कि दो आपके मल्टीपल्स हैं, यानी कि 2 का मल्टीपल भी है और आपका 3 का मल्टीपल भी है, तो इन्हें आप कहते हैं दीज आर कॉल्ड कॉमन और शेयर्ड मल्टीपल्स। क्या बन जाएंगे आपके? कॉमन मल्टीपल जो दोनों नंबर्स में आ रहे हैं। मेक नंबर एंड राइट इट इन द करेक्ट प्लेस। Golu, Gunnu, Chandu, Nitesh, Raj have participated in this game. Number cards from 1 to 9 and stacked in front of them. The rule of the game is that each player will pick only 2 cards at a time from these cards and make a number from these cards. The number formed by stacking them back and forth will be written in the round circles below. यानी कि क्या करना है कि अगर आपको 2 कार्ड्स आपने निकाले, उससे आप एक नंबर को फॉर्म करेंगे, राइट। गुन्नू, लुक आई हैव पिक्ड अप 9 and 6, तो उससे क्या बनेगा आपका? 96। चंदू, ओके मुन्नी, बट इन विच सर्कल्स विल यू राइट दिस नंबर्स। तो अब ये कौन से नंबर में, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 वाले सर्कल में होगा, मल्टीपल ऑफ 3 में होगा, मल्टीपल ऑफ 4 में होगा। तो आप देखेंगे मल्टीपल ऑफ 2 में भी होगा, मल्टीपल ऑफ 3 में भी होगा और मल्टीपल ऑफ 4 में भी होगा। नेक्स्ट, नो आई हैव रिटन इट like this, Chandu, but why have you written 69 with in the circle of 3? Because जो 69 है वो 3 से डिविजिबल होगा, तो ये आप कहेंगे कि हाँ ये आपका फैक्टर है। गुन्नू, लुक चंदू, फर्स्ट आई डिवाइड 69 बाय 2, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 23। देन नो, 2 से डिवाइड तो होगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि 9 है, ऑड नंबर है। 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 32। 4 से आप डिवाइड करेंगे वो भी पॉसिबल नहीं है, 5 से आप डिवाइड करेंगे वो भी पॉसिबल नहीं है, तो आप किस सर्कल में लिखेंगे? ओनली मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1, यहाँ 0, 1 एंड 4, तो जहां पर रिमाइंडर बचता है आप उसे उसका मल्टीपल काउंट नहीं कर सकते, राइट। Here only 69 is going to be completely divided only by 3 and in the remaining numbers remainder is left. Therefore 69 will be a multiple of 3 only. Can you tell why Gimme has written 96 within the circle of 2, 3 and 4? क्योंकि जो 96 होगा वो 2, 3 and 4 से completely divisible होगा। Now find out, just like the cat and the rabbit repeatedly jumped over the numbers, you also jumped over the number 3 and 4 and write the multiples. तो 3 के multiples क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, राइट। तो आप इन्हें लिख सकते हैं कि 3 के मल्टीपल्स आपके होंगे 6, 9, 12, 15। 4 के मल्टीपल्स होंगे 4, 8, 12, 16 एंड 20। और भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। नेक्स्ट, राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या होगा? तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे हिसाब से आपका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 20, आपका सबसे स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 4 इन नंबर्स अप टू 60। तो कौन कौन से नंबर होंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 नहीं हो सकता है, 12 हम ले सकते हैं, 8 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। आप लेंगे 12 जो तीनों के टेबल में आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है। फिर आप लीजिए यहाँ पे 14, नॉट पॉसिबल। 14 के बाद 16 लेंगे, नॉट पॉसिबल। फिर आप लेंगे 24, तो 24 आपका तीनों टेबल्स में आता है। उसके बाद यहाँ पर ले सकते हैं आप 24 के बाद आप देखिए 26 नॉट पॉसिबल, 28 नॉट पॉसिबल, 30 नॉट पॉसिबल, 30 तीनों में नहीं, 4 में नहीं आएगा, 32 आपका नहीं आएगा, 34 आपका नहीं आएगा, 36 आप 3 के टेबल में आ सकता है, 4 के में आता है, 2 के में आता है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 36। तो इस तरीके से आप फर्दर और भी कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
आगे चलते हैं, विच नंबर्स विल बी द मल्टीपल ऑफ 40। तो मल्टीपल ऑफ 40 कौन से नंबर्स होंगे? 2 होगा आपका, 4 होगा आपका, 5 होगा, 8 होगा। तो ये सब नंबर्स आपके मल्टीपल्स ऑफ 40 होंगे। आगे चलते हैं, सिलेक्ट एंड write down the multiples of 2, 3 and 5 from the numbers 8, 24, 15, 21, 18, 33, 23, 17, 168, 39, 500। So multiple of 2 की बात की जा रही है तो आपका 8 होगा, फिर यहाँ पे देखिए 24 हो जाएगा, फिर आपका 18 हो जाएगा, 168 एंड 500। तो इस तरीके से आप इन नंबर्स को राइट डाउन कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 की बात की जा रही है तो 24, 15, 21, 18, 33, 168 एंड 39। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। नाउ थिंक एंड आंसर, विच विल बी द लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ द नंबर 2। तो कौन सा आपका मल्टीपल होगा लार्जेस्ट? तो 99 तो नहीं हो सकता, और 2 डिजिट बोला है तो 99 के बाद क्या आएगा? पहला आपका 98, ये हो सकता है आपका लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ 2। फिर बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल 19 बी अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर? तो आप यहाँ पर कहेंगे नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 19 किसी के टेबल में आता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं इक्वल डिवीजन की। द थर्ड गेम केप्ट वाज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ लड्डूज इक्वली। चीतू एंड सीमा पार्टिसिपेटेड इन इट। द रूल ऑफ द गेम was that the one who gave the maximum number of ways to distribute the laddus equally will be the winner of this game. Like Jitu, look, I have distributed 12 laddus equally in groups of 2, 2, 3, 3 and 4, 4, and you have won this game. If we divide 12 laddus into groups of 2, 2, then the total number of groups will be 6, क्योंकि 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6। अगर 12 लड्डूस को अगर हम 3, 3 करके बांट रहे हैं तो टोटल ग्रुप्स ऑफ क्या होंगे? वो होंगे आपके 4। नेक्स्ट, अगर आप 4, 4 डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपके ग्रुप नंबर कितना होगा? 3। सो सीमा, ओ नो जीतू, यू हैव नॉट सजेस्टेड ऑल द मेथड ऑफ डिवाइडिंग देम इक्वली, सो हैव नॉट येट वोन। यानी कि आपने क्या बोला कि नॉट वन येट, क्यों? क्योंकि उसने सारे ही मेथड्स आपको बता दिए। देयर आर ऑल्सो अदर वेज टू डिवाइड देम इक्वली। सी, इफ वी डिवाइड 12 लड्डूज इनटू ग्रुप्स ऑफ 6, 6 each, then the total number of groups will be 2. If we divide 12 laddus is given one piece, then 12 people will get them. अगर एक एक लड्डू देंगे अगर हम सबको तो कितने आपके बच्चे लोग होंगे? वो आपके 12 लोग होंगे। And if we give all the laddus to one person, then a group will be formed only one. So, if instead of 12 laddus, there were 11, 15 and 24 laddus, how many groups of equal laddus would be formed? तो 11 के लिए आपके इक्वल ग्रुप्स जो होंगे वो नहीं बनेंगे, 15 के लिए होंगे, यहाँ पर 11 के लिए आपके इक्वल ग्रुप्स तो नहीं बनेंगे। अगर आप ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप बन सकता है जो कि 11 होगा, बट इक्वल नहीं होंगे। 15 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके 3 ग्रुप हो सकते हैं, राइट। 5 ग्रुप हो सकते हैं इक्वल, राइट, जहां पर आप 3, 3 लड्डूस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आपके 3 ग्रुप्स भी हो सकते हैं जहां पर आप 5, 5 लड्डूस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। 24 के लिए आप यहाँ पर 2, 2 लड्डूस करेंगे तो भी हो जाएगा, 3, 3 लड्डूस करेंगे तो भी हो जाएगा, 4, 4 लड्डूस करेंगे तो भी हो जाएगा, आप 8 करेंगे तो भी पॉसिबल है, 6 करेंगे तो भी पॉसिबल है। 18 के लिए भी आप 2, 3, 4 नहीं होगा, 6, 6 करेंगे तो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ग्रुप्स हो सकते हैं। अगर 2 करेंगे तो 9 ग्रुप्स होंगे, 3, 3 करेंगे तो आपके 6 ग्रुप्स होंगे, 6, 6 करेंगे तो आपके 3 ग्रुप्स होंगे। Come, let us arrange these groups of laddus and the number of laddus kept in the multiplication chart given below। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका 12 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा आपका क्या? आपका 12 हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आगे, here 2 multiplied by 6 is equal to 12 means that 12 is a multiple of 2 and 6, both the numbers. 2 and 6 are completely divisible by 12, so 2 and 6 are factors of 12। तो यहाँ पर सिंपल सी बात बच्चों आप ये समझेंगे कि अगर आप किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 2 and 6, और आपका कोई आंसर आ रहा है, कोई प्रोडक्ट आएगा, ऑब्वियसली आएगा, तो उस नंबर के जो आपने दो नंबर मल्टीप्लाई करें वो दोनों क्या होंगे? वो उस नंबर के मल्टीपल होंगे। सिमिलरली 12 इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4 एंड 12। तो ये क्या बन जाएंगे? ये उसके मल्टीपल्स बन जाएंगे। कैन यू टेल मोर फैक्टर्स ऑफ 12? सॉरी, फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप बताएंगे कि क्या 12 के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं?
तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 12 है, तो एक 6 भी हो सकता है आपका फैक्टर। सो द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 12। यानी कि मल्टीपल में तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट। और अब जब फैक्टर्स की बात आती है तो हम फैक्टर्स किसे काउंट करते हैं कि कोई जो आपका नंबर है किसी नंबर से जब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो वो उसका क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। Stack the tiles. Manu has 16 tiles. He arranging them in a groups of 4, 8, 16 as shown below. तो जब वो ग्रुप्स ऑफ 4 बनाएगी तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। तभी आपका आंसर 16 आएगा। राइट द फैक्टर ऑफ 16 बाय लुकिंग एट द पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट अरेंज टाइल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फैक्टर हो सकते हैं 4, यहाँ पे 2 भी होगा, 4, 8, 1 भी होगा, सॉरी, और ये 16। तो ये सब क्या है, ये हो जाएंगे आपके फैक्टर्स ऑफ 16, क्योंकि इन नंबर से आपका 16 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्रिएट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स पॉसिबल बाय कलरिंग 20 स्क्वायर्स इन द गिवन ग्रिड। तो ये तो आपका कलरिंग पोर्शन है, आप इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर द लेंथ एंड विड्थ फॉर्म ऑफ द फॉर्म रेक्टेंगुलर tiles the factors the number 20 think and write factors of 20। तो factors of 20 पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 is a factor, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होगा तो 1 लिखिएगा ही। 2 is a factor, 4 is a factor, 5 is a factor, 10 is a factor and 20 itself is a factor of 20, right? Now we move forward students, and here we have exercise question number 1. Write all the factors of the following numbers। तो 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 and 5 and 25, ये इसके फैक्टर्स होंगे। अगर बात की जाए 22 के फैक्टर्स कौन होंगे, सो 1, 2, 11 and 22 itself। Now question number 2, write the first 3 common multiples of the given numbers। तो 8 and 12 के कॉमन हमें 3 मल्टीपल्स चाहिए। तो 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 16, 24, 32, 40, 48। 12 के मल्टीपल्स देखेंगे हम तो 24, 36, 48। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स की बात हुई थी, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 24, 48, बस 48 के बाद और एक और चाहिए, तो 48 के बाद यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 60, यहाँ पर आ जाएगा आपका 72 और यहाँ पर आपका 48 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 56, देन आएगा आपका 6, 7। So now student question number 2, write the first 3 common multiples of the given numbers। तो यहाँ पर 8 and 12 की बात करेंगे तो ये आपके क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12। और कॉमन की बात होगी तो देखिए 24, 48, 72, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। 6 और 9 के अगर हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो वो क्या होंगे, 18, 36 एंड 54। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर लेस देन 60। तो लेस देन 60 क्या होंगे, 10, 15, 20, 25, 30। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीपल ऑफ 8 विच आर ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 100। सो ग्रेटर देन 50 आपके क्या होंगे, आपके पास सबसे पहले है 56, 56 के बाद आपके पास आ जाएगा 64, उसके बाद क्या आ जाएगा 72, 72 के बाद आपके पास आ जाएगा 80, देन 88। ये सब क्या है, ये आपके लेस देन 100 एंड ग्रेटर देन 50 आपके मल्टीपल्स ऑफ 8 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, Piyush and Amit are running around a field. Piyush completes 1 round in 5 minutes and Amit in 6 minutes. After how much time will both of them reach the same place after start running together। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि दोबारा से कंटिन्यू करते हैं तो किस टाइम पे, आफ्टर हाउ मच टाइम, तो 30 मिनट्स बाद ये दोनों के दोनों एक सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे होंगे। आपको कैसे पता चला, जब आप 5 और 6 का एलसीएम लोगे तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर 30 आएगा। तो आफ्टर 30 मिनट्स ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स 3, 5 एंड 15। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 3, 5 एंड 15, तो वो 15 ही होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स 10, 15 एंड 20। सेम क्वेश्चन है, तो 10, 15 एंड 20 के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आएगा 10 में 20, 15 में तो 30 आपका नहीं, 30 भी नहीं होगा, 40 हो सकता है, नहीं 40 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 के टेबल में 40 आता है, 20 के टेबल में 40 आता है, लेकिन 15 के टेबल में 40 नहीं आता है। सो यहाँ पर आपका 40 नहीं है तो 60 होगा जो तीनों टेबल में आता है, क्योंकि 50 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर आप कर देंगे 60 पर 60 आपका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा।
इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो कि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो फॉर टुडे दैट्स इट। नाउ गोइंग टू मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे। बाय बाय स्टूडेंट्स।